everyone. I hope you all are fine and safe. My name is Kadar Badresh and I am your maths teacher. Today's topic is exercise number 3.5 and 3.6. Page number 61 to 64. So let's start the lecture. Okay, now exercise number 3.5. Question number 1 is that estimate each difference to the nearest 10, also find the actual difference. जो हमने अभी कर लिया है थोड़ी देर पहले, same is a difference. Okay, so there is a 92 minus 47 and 72 minus 21. Okay, so let's start question number 1a. Okay, so there is a 92 minus 47. So first of all we have to find out the nearest 10 number. Okay, so there is a nearest 10 number is 90 and there is a nearest number is 50. Okay, so it's a actual number and it's estimate number. Okay, so there is a actual number and estimated number. Okay, so now we have to subtract the numbers. So first of all we have to subtract the estimated numbers. Okay, so there is a first of all estimate numbers. So there is a 90 minus 50. Okay, so 90 minus 50. So first of all ones place 0 minus 0. So 0 minus 0 is equal to 0. After that 9 minus 5. So 9 minus 5 is equal to 4. So answer is 40. Okay, now actual numbers. So there is a 92 minus 47. Okay, so there is a 2 minus 7. We cannot subtract 2 minus 7. So we have to borrow the number from neighbor. So 9 become 8 and 2 become 12. So now 12 minus 7. So 12 minus 7 is equal to 5 and 8 minus 4 is equal to 4. So there is a 45. So the estimated difference is close to the actual difference. Okay, so इसी तरह से आपको बी भी करना है. 72 minus 21. 72 minus 21. तो ये आपको होमवर्क में करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस. जो हमने यहाँ पे टेंस नंबर के साथ किया था सेम एज अ हंड्रेड्स नंबर के साथ करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2a. ओके, सो देर इज अ 439 minus 302. So first of all we have to find out the nearest number. So there is a 400 and there is a 300. ये हमारा नियरेस्ट नंबर्स है. ओके, 400 and 300. Okay, so there is a actual number and there is a estimated numbers. So first of all we have to subtract the estimated numbers. So there is a 400 minus 300. Okay, so first of all ones place 0 minus 0. So 0 minus 0 is equal to 0. Again 0 minus 0 is equal to 0 and 4 minus 3 is equal to 1. Okay, so answer is 100. Now actual number. So there is a 439 minus 302. Okay, so now 9 minus 2. 9 minus 2 is equal to 7. So there is a 7. After that 3 minus 0 is equal to 3. 4 minus 3 is equal to 1. So answer is 137.
ओके, सो यहाँ पे एस्टिमेटेड डिफरेंस एंड एक्चुअल डिफरेंस कर लिया है. एंड नाउ बी इन योर homework. And now we have to start question number 3. Estimate each difference to the nearest thousand. Also find the actual difference. Okay, so let's start. Okay, so question number 3, 5499. So first of all we have to find out the nearest thousand number. Okay, so there is a nearest thousand number is 5000 and there is a 4000. Okay, so there is a actual numbers and estimated numbers. Okay, so let's start the subtract the estimate numbers. So okay, now we have to subtract the estimate numbers. So there is a 5000 minus 4000. So there is a 0, 0 and 0, and 5 minus 4 is equal to 1. So there is a 1000. Now actual number, तो ये हमारा actual number है, ये जो हमारा है वो actual number है. So there is a 5499 minus 4001. Now we have to subtract the numbers. 9 minus 1 is equal to 8. 9 minus 0 is equal to 9. 4 minus 0 is equal to 4. And 5 minus 4 is equal to 1. So answer is 1498. Okay. And question number B in your homework. Now we have to see the question number 4. Estimate the difference between 5429 and 5907 by rounding off the nearest thousand. तो हमें यहाँ पे नियरेस्ट 1000 नंबर को फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4. 5429 minus 5907. Okay, so first of all we have to find out the estimate values. Okay, so estimate values किस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग? राउंडिंग ऑफ मेथड से. तो हमें यहाँ पे थाउजेंड्स नंबर को फाइंड आउट करना है. ओके, सो नियरेस्ट 1000 नंबर. सो आपको पता ही है कि ये जो नंबर्स है उसमें ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000. तो हमें यहाँ पे थाउजेंड्स नंबर को फाइंड आउट करना है. तो इसका नियरेस्ट 1000 नंबर कौन सा होगा? 5000. ओके, सो 5000. ओके, और यहाँ पे हमारा नियरेस्ट 1000 नंबर कौन सा होगा? 6000, बिकॉज ये 6000 के नियरेस्ट है. 5907. सो देयर इज़ अ 6000. ओके, एंड अब हमें क्या करना है? इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. किसका? जिसकी हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट की है. तो हमने कौन सी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट की है? ये दोनों. तो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, तो लेट्स सी. देयर इज़ अ 6000 माइनस 5000, बिकॉज ग्रेटर नंबर पहले होता है और स्मॉलर नंबर बाद में. मीन्स टॉप पे हमारा ग्रेटर नंबर एंड बॉटम पे हमारा रहेगा स्मॉलर नंबर. ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0 minus 0. So 0 again 0 and again 0, because 0 minus 0 is equal to 0. Now 6 minus 5. 6 minus 5 is equal to 1. So answer is 1000. तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? 1000. ओके. Okay, now question number 5. The cost of a table is 3529 rupees. Rekha has a 2325 rupees. Estimate the amount to the nearest hundreds to find the amount she need to more buy the table. Okay, so एक टेबल है जिसकी प्राइस है 3529 रुपीज़ और रेखा के पास कितने हैं? 2325 रुपीज़. सो अब रेखा को कितने ज़्यादा पैसे चाहिए
ये टेबल बाय करने के लिए, तो हमें यहाँ पे नियरेस्ट 100 नंबर्स बाय करने पड़ेंगे कि कितने नियरेस्ट 100 नंबर उसको चाहिए ये टेबल को बाय करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो there is a cost of a table is 3529 and Rekha has a 2325. So first of all we have to find out the difference. Okay, so there is a 3529 minus 2325. First of all we have to find out the difference. Okay, so 9 minus 5. So 9 minus 5 is equal to 4. 2 minus 2 is equal to 0. After that 5 minus 3, so there is a 2, and 3 minus 2 is equal to 1. So answer is 1204. So Rekha need 1204 rupees to buy the table. Now we have to also find the nearest hundreds number. Okay, so 1204 का जो नियरेस्ट 100 नंबर होगा वो होगा 200, बिकॉज हमारा जो हंड्रेड्स नंबर है वो 2 है और यहाँ पे 204 है। सो हमारा नियरेस्ट नंबर होगा 1200. ओके, estimate the difference between 4576 and 4231 to the nearest tens, hundreds and thousands. सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट 10 नंबर, 100 नंबर एंड 1000 नंबर. सो यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके, एंड नाउ maths fun. Okay, so there is a one puzzle and we have to solve it. Okay, so in this puzzle choose two numbers from the circle. Okay, so यहाँ पे 1, 2 and 3 सर्कल्स दिए हुए हैं, तो आपको उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी दो सर्कल्स को चूज करना है, एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. ओके, तो आपको पहले जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, राइट द डिफरेंस इन द सर्कल बिटवीन द टू नंबर्स. तो जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपको दो नंबर्स के बीच में आपको जो सर्कल्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको लिखना है. जहाँ 1 and 2 ये दो सर्कल्स है तो उसके सेंटर में आप लिख सकते हो यहाँ, यहाँ और यहाँ. ओके, देन आफ्टर रिपीट स्टेप 1 and 2 कंप्लीट द पजल. तो ये आपको रिपीट करते जाना है जब तक आपका ये जो पूरा सर्कल है वो कंप्लीट नहीं होता. ओके, जैसे कि आपने फर्स्ट ये दोनों नंबर्स को लिए थे, तो आफ्टर दैट आप ये दोनों नंबर्स को ले लो, आफ्टर दैट ये दोनों नंबर्स को ले लो, और आपको जो भी डिफरेंस मिलेगा वो आपको इन सब के अंदर फिल करते जाना है, और लास्ट में आपके सारे सर्कल्स फिल हो जाएंगे. ओके, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग अ मॉडल. तो हमने एडिशन के अंदर भी देखा था कि हमारे पास वहाँ पे पार्ट वॉल मॉडल, कंपैरिजन मॉडल, इस तरह के मॉडल्स अवेलेबल्स थे. सो सेम एज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ पार्ट वॉल मॉडल. सो व्हाट इज़ द पार्ट वॉल मॉडल? सो पार्ट वॉल मॉडल के अंदर हम दो अलग अलग पार्ट्स को वॉल करके, मतलब पूरा एक करके उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 3 और यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 5 क्रिएट हो जाएगा. ऑब्वियसली यहाँ पे 3 + 2 हम करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. तो ये जो पूरा है वो पूरा 5 है, और ये आपका जो पार्ट है पिंक कलर का वो आपका 3 है, तो ये आपका जो ब्लू पार्ट है वो आपका 2 होगा. ओके, तो यहाँ पे वॉल माइनस पार्ट, मतलब कि यहाँ पे आपका जो वॉल है ये पूरा होता है वो वॉल होता है. वॉल माइनस आपका कोई भी एक पार्ट जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी 3 दिया हुआ है, तो आप वॉल माइनस पार्ट करेंगे तो आपको आपका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा.
So it's called part wall model. Okay. So in comparison model यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग बार चार्ट्स दिए गए हैं, रेक्टेंगल बार दिए हुए हैं. ओके, सो A and B. सो A हैज़ अ 5 coins. तो यहाँ पे जो A है उसके पास 5 coins है एंड B हैज़ अ 2 coin लेस देन A. मतलब कि जो 5 के पास है उससे 2 coins कम है. सो हाउ मेनी कॉइन्स डज बी हैव. तो हमें बी के पास कितने कॉइन्स है वो ये फाइंड आउट करना है. तो हम किस तरह से करेंगे. तो यहाँ पे दो अलग अलग रेक्टेंगुलर बार दिए हुए हैं. तो ए हैज़ अ 5, मतलब जो होल है वो हमारा 5 है. और यहाँ पे बी हैज़ अ 2 कॉइन लेस देन ए, मतलब ए तो पूरा 5 है. तो यहाँ पे जो बी है वो हमारा 2 लेस है, मतलब यहाँ पे 2 तो दिया हुआ है. तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 3 मोर चाहिए. सो आंसर इज 3 + 2 = 5. सो लार्जर क्वांटिटी माइनस डिफरेंस, मतलब जो हमारी लार्जर क्वांटिटी है वो कौन सी है, ए, उसके पास 5 है. सो लार्जर क्वांटिटी माइनस डिफरेंस, जो हमें सेकेंड डिफरेंस दिया हुआ है तो उन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा स्मॉलर क्वांटिटी. ओके, सो इस तरह से हम लोग मॉडल्स का यूज़ करके डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके ओके, नाउ सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स. सो एग्जांपल नंबर 1 इज देयर आर 1896 पीपल एट अ बुक फेयर. 983 of them are children and the rest are children. ओके, सो एक बुक फेयर है, उसके अंदर 1896 पीपल है. उनमें से 983 एडल्ट्स हैं और बाकी के जो सब है वो चिल्ड्रंस हैं. ओके, सो उसी के रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर. तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है, टोटल कितने हैं 1896 और उनमें से एडल्ट 983. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो 1896 माइनस 983. सो लेट्स सी. ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस डिजिट 6 minus 3. So 6 minus 3 is equal to 3. After that 9 minus 8. So 9 minus 8 is equal to 1. After that 8 minus 9. We cannot subtract 8 minus 9 because 8 smaller number है और 9 हमारा greater number है. ओके, सो हम नेबर से क्या करेंगे, नंबर्स को बोरो करेंगे. सो जो 1 है वो हो जाएगा 0 और जो 8 है वो हो जाएगा 18. So 18 minus 9. So 18 minus 9 is equal to 9. So there is a 9. So answer is 913. So ये हमारा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस. ओके, सो 913 हमारे चिल्ड्रंस होंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. How many more adults and children are there? सो हमें यहाँ पे चिल्ड्रंस का तो पता चल गया 913. सो नाउ वी हैव टू फाइंड ओनली एडल्ट्स. सो हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है कि एडल्ट्स कितने हैं. सो यहाँ पे 983 एडल्ट्स हैं और 913 चिल्ड्रंस हैं. सो यहाँ पे टोटल कितने थे, 1896. ओके, सो नाउ अनदर क्वेश्चन. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है होल, मतलब कि यहाँ पे टोटल जो है वो ऊपर दिया हुआ है. एडल्ट्स यहाँ पे 983 एंड यहाँ पे चिल्ड्रंस हमने जो फाइंड आउट किए थे 913. ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन. Example number 4. The greater of two numbers is 6031.
the difference between the smaller number and the greater number is 3061. Okay, so there is the two questions. First of all, what is the smaller number? सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेटर नंबर का जो हमने रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ किया है वो यहाँ पे पिंक कलर का है, वो 6031 एंड स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर जो है वहाँ पे 3061, तो यहाँ पे वो छोटा सा जो कॉलम है वो हमारा 3061 एंड अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो ये अनदर हमारा बार है वो। ओके, सो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सो 6031 माइनस 3061, तो अब जब यहाँ पे वोल नंबर जो हमारा है उसका हम एक पार्ट से माइनस करेंगे तो हमें हमारा दूसरा पार्ट मिल जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल के अंदर देखा था। ओके, सो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है 2970। ओके, और वो हमारा स्मॉलर नंबर है बिकॉज यहाँ पे 6031 बिगर नंबर है, देन आफ्टर 3061 भी हमारा बिगर नंबर है, और यहाँ पे 2970 वो हमारा स्मॉलर नंबर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स? सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दो नंबर्स का सम क्या है, मतलब यहाँ पे व्हाट इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग दो नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमें हमारा जो सम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम 2970 प्लस 6031 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9001। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट ईच मॉडल एंड then solve the subtraction sentence. So question number 1a, Ramya paid 4073 rupees for her airfare and Renuka paid 2386 rupees less than Ramya for his airfare. So how much did Renuka pay for his airfare? So हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि रेणुका को अगर एयर फेयर में जाना है तो उसको कितने ज़्यादा रुपीस पे करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे रमिया ने 4073 रुपीज़ पे किए हैं और रमिया के पास कितने कम है? 2386 लेस है, तो उसको वहाँ पे कितने पे करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर बार। फर्स्ट ऑफ ऑल रमिया, सो रमिया हैज़ अ 4073 रुपीज़। ओके, सो रमिया ने कितने पे किए हैं? 4073 रुपीज़। एंड नाउ रेणुका पेड, सो रेणुका ने कितने पे किए हैं? सो यहाँ पे 2386 रुपीज़। ओके, बट उसने यहाँ पे पैसे कम पे किए हैं बिकॉज उसके पास उतने नहीं है, तो उसने यहाँ पे 2386 रुपीज़ को पे किए हैं। बट उसको अभी अगर एयर फेयर के अंदर जाना है तो उसको कितने ज़्यादा पे करने पड़ेंगे? तो यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया है वो हमारा है, उसको इतने ज़्यादा रुपीज़ पे करने हैं। तो हम ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पे जो हमारा टोटल है 4073 रुपीज़, उसमें से हम माइनस करेंगे 2386 को, तब हमें मिलेगा जो रेणुका को एक्स्ट्रा पे करना है वो। ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 4073 माइनस 2386. Okay, so let's subtract this. First of all 3 minus 6, so we cannot subtract 3 minus 6, so we have to borrow the number from neighbor. So 7 becomes 6 and 3 become 13. So now 13 minus 6, so 13 minus 6 is equal to 7. Okay, now 6 minus 8, again we cannot subtract 6 minus 8, so again we have to borrow the number from neighbor, but there is a 0, so we cannot borrowing from 0, so we have to
go to the another neighbor. So there is a 4, so 4 become 3 and there is a 1, so 0 become 10 and now 10 give it to 6, so 10 become 9 and 6 become 16. So now 16 minus 8, so 16 minus 8 is equal to 8. Now 9 minus 3, so 9 minus 3 is equal to 6. And now 3 minus 2, so 3 minus 2 is equal to 1. So answer is 1687. Okay. So now we have to fill there 1687. Okay. So answer is 1687. सो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं 1687 प्लस 2386 इज इक्वल टू 4073. सो इस तरह से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. इट्स वेरी इजी. मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ. देयर वेर 4536 पार्टिसिपेंट इन द रिपब्लिक डे परेड. 1657 ऑफ देम वेर एडल्ट्स एंड द रेस्ट वेर चिल्ड्रन. सो वहाँ पे 1657 जो है वो एडल्ट्स है. एडल्ट्स मीन्स आपको पता है 18 प्लस, जिसकी एज 18 से ज़्यादा होती है वो होते हैं एडल्ट्स, और बाकी के जो है वो सारे चिल्ड्रंस हैं. सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस पार्टिसिपेटेड इन द परेड, तो आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके. सो यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस. तो एडल्ट्स कितने हैं और चिल्ड्रंस कितने हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Solve the following word problems. Draw a bar model to help yourself. Okay, so question number 1 is the airfare to Goa is 5886 rupees. The airfare to Mumbai is 798 rupees less than the Goa. So what is the airfare to Mumbai? Okay. सो यहाँ पे गोवा की जो टिकट प्राइस है वो यहाँ पे 5886 रुपीज़ है, और यहाँ पे मुंबई की जो एयर टिकट है वो है 798 रुपीज़ लेस, मतलब उतनी कम है गोवा से. तो हमें अभी यहाँ पे मुंबई की एयरफेयर फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, जो गोवा की जो एयरफेयर है उसमें से हम जो लेस है वो उसको माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा मुंबई का एयरफेयर. Okay, so let's see. Okay, so there is a bar graph. So there is a Goa price is 5886 rupees. Okay, जो टोटल है हमारा वो है 5886 जो गोवा की प्राइस है. एंड नाउ यहाँ पे जो लेस है वो है 798. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हम ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हम जो ये प्राइस हमारी है जो लेस है उसको हम मेन प्राइस से माइनस करेंगे. ओके. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 5886 माइनस 798. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वंस डिजिट 6 minus 8. So 6 minus 8 is equal to, we cannot subtract. Okay. So first of all we have to borrow the number from neighbor. So 8 becomes 7 and 6 become 16. Now 16 minus 8. So 16 minus 8 is equal to 8. So there is a 8. Now 7 minus 9. So we cannot subtract. So again we have to borrow number. So there is a 7 and there is a 17. Okay. So 7. So 8 becomes 7 and 7 becomes 17. So 17 minus 9. So 17 minus 9.
So there is a 8. Now 7 minus 7. 7 minus 7 is equal to 0. And 5, same as a 5. Okay, so answer is 5088. So now we have to write there 5088 रुपीज़. सो जो हमारी बाकी की जो प्राइस थी वो कितनी हो गई है 5088 रुपीज़. ओके, सो नाउ वी हैव टू ऐड देयर 5088 प्लस 798. So 798 plus 5088 is equal to 5886, जो हमारा मेन आंसर है. ओके, सो इस तरह से हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Okay, now question number B. A total of 8,346 visitors visited to the zoo in March. After that, 6,780 were Indians and the rest were foreigner. जो 8,346 थे उनमें से 6,780 इंडियंस थे, बाकी के सारे फॉरेनर्स थे. सो हाउ मेनी फॉरेनर्स विजिटेड टू द जू. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने फॉरेनर्स ने यहाँ पे विजिट किया था जू का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देर इज़ अ टोटल विजिटर इज़ 8,346, जो हमारा टोटल है, मतलब वॉल. हम यहाँ पे वॉल एंड पार्ट वाला बार मॉडल यूज़ करेंगे. ओके, सो आफ्टर दैट इंडियंस, तो यहाँ पे इंडियंस जो थे वो 6,780, और हमें फाइंड आउट क्या करना है फॉरेनर्स. तो ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा फॉरेनर वाला पार्ट है. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8,346 माइनस 6,780. जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा फॉरेनर्स की वैल्यू. ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस. 8,346 minus 6,780. Okay, so let's subtract. First of all, 6 minus 0, so 6. Now 4 minus 8, so we cannot subtract, so we have to borrow the number from neighbor. So 3 become 2 and 4 become 14. Now 14 minus 8, so 14 minus 8 is equal to 6. Now 2 minus 7, again we cannot subtract, so we have to borrow the number. So 8 becomes 7 and 2 become 12. So 12 minus 7, so 12 minus 7 is equal to 5. Now 7 minus 6, 7 minus 6 is equal to 1. So answer is 1566. सो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो होगा 1566. तो हमारा जो आंसर है वो फॉरेनर का 1566. ओके, नाउ सी. The sum of two numbers is 6,403. The smaller number is 2,313. So what is the greater number? It's very easy question. आपको ये होमवर्क में करना है. ओके, हमारा ऊपर जो एग्जाम्पल्स थे उसी के अंदर ये कवर अप हो चुका है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी. द प्राइजेस for domestic tour packages for 3 days are given below. What is the difference between the
सो उसी के रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेज, तो हमें यहाँ पे दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे पहले तो चीपेस्ट मतलब कि एकदम जो सस्ता होता है वो चीपेस्ट होता है। तो यहाँ पे मनाली, तो उसकी प्राइस है 1500। तो इन सब में से वो चीपेस्ट है। तो 1500 माइनस मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेज, तो मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा है, मतलब कि सबसे महंगा, तो 1800 नैनीताल। तो 1500 में से 1800 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमें हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ पैकेज टू मनाली एंड शिमला। तो हमें यहाँ पे मनाली की प्राइस और शिमला की प्राइस को माइनस करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आप इजीली इस तरह से इसको कर सकते हो। ओके, now question number E. So question number E, 890 people boarded a train at the first station, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन से 890 पीपल्स बैठे हैं। आफ्टर दैट एट द सेकेंड स्टेशन another 238 people boarded at the train। जो सेकेंड स्टेशन है वहाँ से 238 पीपल्स और अंदर बैठे हैं, बट वहाँ से 136 पीपल गॉट ऑफ, मतलब वहाँ से 136 पीपल है वहाँ से उतर गए हैं। सो हाउ मेनी पीपल्स आर ऑन द ट्रेन एट द सेकेंड स्टेशन नाउ। तो अभी जो सेकेंड स्टेशन पे कितने पीपल्स होंगे, तो हमें ये किस तरह से करना है, लेट्स सी। Okay, so let's understand first of all. So there is a 890 people at the first station। यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन पे 890 पीपल्स थे। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड स्टेशन पे 890 प्लस यहाँ पे 238 पीपल्स यहाँ पे सेकेंड स्टेशन पे आ गए। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे टोटल हो गए 1128, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन एंड सेकेंड स्टेशन दोनों का हमने एडिशन किया, तो यहाँ पे 1128 पीपल टोटल हो गए। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि यहाँ पे 136 पीपल यहाँ से चले गए, गॉट ऑफ। तो यहाँ से हमने 1128 में से 136 को हमने माइनस कर दिया, तो हमें हमारा आंसर जो 992 हमें मिल गया। तो जब सेकंड स्टेशन पे ट्रेन होगी तो वहाँ पे 992 पीपल्स अवेलेबल होंगे। ओके, सो इज दैट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर F, ज्योति बैग्ड 2380 cookies in September. She baked 565 favor cookies in October. So how many cookies did she bake in October? So ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अक्टूबर में ज्योति ने कितनी कुकीज़ बेक की थी वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, नाउ आफ्टर दैट थिंक स्मार्टर। Okay, form the smallest and the greater number of 4-digit number using 5, 9, 0 and 1। तो यहाँ पे आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटर नंबर बनाना है। कौन से नंबर्स को यूज़ करके, 5, 9, 0 and 1। आफ्टर दैट फाइंड द एस्टिमेटेड एंड द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए होंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर, तो उन दोनों के आपको पहले एस्टिमेटेड नंबर्स फाइंड करने हैं और उसी का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके।